Hey everyone! Hope you are in the best state of your body and mind. And today I've got a very beautiful surprise for all of you. Come on, guess it. Quick! Oops, surprise little bit leaked. It's okay. So the surprise is. Ta-da! One short lecture for class 10th economics. Quite a requested topic. So today I'm here with a very requested topic. Sectors of Indian economy, economics, class 10th by me, Lavanya, and this is a one short lecture specially created for all of your last day revision, last minute revision. So let me change the slide first. First of all, do tell me, children, how are you feeling? What are your feelings just one day before your board exams? Uh, I'm sure you'll be feeling a little confident because you have worked hard all through the year. Also, uh, some of you might be feeling a little nervous, and that's normal. Everybody feels it before the exams, so no worries. How many of you are excited to get the paper? Excitement of getting the paper, or excitement of attempting the paper, maybe excitement of getting nice results and flaunting it in front of your relatives and friends. So there is a mix of feelings. Presently, I am also going through it. Just thinking of all of you and going through all these feelings. So just get to the lecture. Just enjoy the process. And today's positivity capsule is: success isn't always about greatness. It's about consistency. Consistent hard work leads to success. And I'm sure, and I'm so sure that all of you have worked consistently well, and just have faith in yourself. Just have that power within you that you can just overcome all the obstacles. No worries, children, greatness will come. Just trust the process. Results तो आएंगे ही, right? Because you have worked hard. Just trust yourself. Do not just fall prey with some negativity कि अरे अब क्या होगा. Do not be very nervous. That's also not good for your health. Being a little nervous is okay, because everybody, you know, walks through that phase of life, so it's okay. Once you get to the exam hall, once you sit for the exams, all nervousness will go. And just remember one thing: you are enough. You are powerful. You are very powerful. The sparkle within you has not yet gone off. It's still lightning. Just just trust the process. Just trust yourself more than anybody else. Go and just do it. So with this, I would like to move ahead with the topic. And what are we going to discuss today, since it's a one shot lecture? First, let me just close my camera so that there are no distractions. There are a bit of distractions, see? So I'm closing the camera. So what we will study today: three sectors of economy, comparison of the three sectors of economy, difference between organized and unorganized sector, classification of economic activities. So all the major points we are going to cover. We are going to cover the points with example, with detail. Please just sit back, relax, and just chill. One day before the exam, just chill. Just enjoy. Okay, just sit back, revise. Light revision should go on. One day before exam, you cannot get worried. You cannot get anxious, because it will definitely affect your health. Enjoy the process. Just enjoy the process, and do tell me in the comment section below, what more help do you want from me? Do you want any science lectures, or there are exams coming up? Just let me know and I'll get you the thing done.
By the way, I have taken these notes from a source which I am going to mention. It is just a second. It is a source from the internet. Since I didn't get time to write everything down, I had to make a one shot quickly as possible. Yesterday at night I got too many requests about making this chapter one shot, making one shot videos. I couldn't make much, but I could do this bit. So just please enjoy, sit back, do not worry about anything, just trust yourself, because you are more powerful than any obstacle. You are more powerful. Just have faith, because you have studied. I know that you have studied. I know that you have worked very hard. You have burnt midnight oils before, and I know that all through the year you have churned your brain, you have churned your thoughts regarding the boards कि हाँ अब तो जैसे ही 10th आ जाता है ना, we feel that अरे अब तो बहुत बड़े हो गए. Our parents also treat us like that कि अब तो बोर्ड देना है. Relatives pressure, peer pressure. So do not let anything just overburden you. Do not let anything come over you. Just enjoy, sit back, study. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं without wasting any time, because time is money. Let's begin with full josh, full energy, full enthusiasm just before the exam. Just sit back, study, relax, light revision, one shot lectures going on. Have a tea in your hand, just have a cup of tea. Sit back, sip, study, enjoy. Let's move on. तो आज की फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल. येस और नो? आई थिंक येस, आई एम क्लियरली ऑडिबल. एम आई? तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का फर्स्ट पॉइंट क्या है, एंड दिस इज इट. Those activities which generate some income are known as economic activities. कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमें कोई इनकम, कोई अर्निंग्स मिलती हैं, that is your economic activities. For example, a computer engineer who is creating a software for his profit is making money from his work. जिस भी काम से मनी मिल रहा है, that is simply your job, and that comes in economic activities, right? Let's come to the next point. ये रहा नेक्स्ट पॉइंट. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. देयर आर बेसिकली 3 सेक्टर्स: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में सारे फार्मिंग रिलेटेड काम होते हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर बेस्ड वर्क्स आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर डील्स विद manufacturing and industries. So whatever the industrial production is going on in the country comes in the secondary sector. Tertiary sector deals with, it provides supports to other 2 sectors, that is primary and secondary. It deals with exportation. It basically deals with services. It deals with services like transportation, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा. तो जितने भी सर्विसिंग के काम है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ऑल दिस कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर, जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स नहीं. इट इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज. प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स आर प्रोवाइडिंग गुड्स, whereas the tertiary sector is providing services, right? Let's move on. Let's compare the 3 sectors now. So this is it. As thousands of economic activities are going on in all the 3 sectors, it makes almost impossible to take account of every such activities. हर एक्टिविटी, हर सेक्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, हर एक्टिविटी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. तो हम ओनली फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज को काउंट करते हैं एज अ GDP. इन अ GDP प्रोसेस, GDP प्रोग्रेस, वी काउंट ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. बीच के इंटरमीडिएट्स को हम काउंट नहीं करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स.
लाइक अभी ये नेक्स्ट पॉइंट भी दे रखा है कि वी चेक ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. प्लीज डू रिमेंबर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसको अच्छे से याद रखें कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर हु सेल्स वीट to a flour mill for rupees 8 per kg. He sells it for rupees 8 per kg. The mill grinds the wheat. अब आगे का प्रोसेस होगा, क्या होगा? मिल क्या करेगा? वीट को ग्राइंड करेगा और उसका फ्लोर बनाएगा, आटा बनाएगा. आटे को वो बिस्किट कंपनी को सेल करेगा. और कितने में सेल करेगा? 10 रुपीज़ पर केजी. उसने कितना प्रॉफिट लिया? 2 रुपीज़ पर केजी का उसने प्रॉफिट लिया. 8 रुपीज़ का उसको वीट मिला था जिसका उसने फ्लोर बनाया और फ्लोर बना के 10 रुपीज़ में बेच दिया. किसको बेच दिया? बिस्किट कंपनी को. बिस्किट कंपनी ने क्या किया? उस फ्लोर का यूज़ किया, शुगर का यूज़ किया, ऑयल का यूज़ किया और उसने 4 बिस्किट के पैकेट्स बनाए. अब ऑब्वियसली सिंस दिस इज़ एन एग्जाम्पल, 4 बिस्किट कोई नहीं बनाती कंपनी, बिलियन बल्क्स में बनते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इसमें 4 बिस्किट्स बन रहे हैं, 4 बिस्किट के पैकेट्स बन रहे हैं. Now, what happens? It sells the biscuit to the market to the consumers for ₹60. और बिस्किट की कंपनी क्या कर रही है? ₹60 में सेल कर रही है किसे? कंज्यूमर को. 15 रुपीज़ पर पैकेट. हर पैकेट को 15 रुपीज़ में सेल कर रही है. तो ऑब्वियसली वो हर स्टेज पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ले रही है. अपना अपना फ्लोर मिल ने अपना प्रॉफिट लिया, बिस्किट कंपनी ने अपना प्रॉफिट लिया. अब बिस्किट्स क्या है? फाइनल गुड्स हैं, तो दैट रीच द कंज्यूमर. कंज्यूमर के पास क्या पहुंचा? क्या फ्लोर पहुंचा? ना. क्या वीट पहुंचा? ना. बिस्किट्स पहुंचे. बिस्किट्स 15 रुपीज़ पर पैकेट के कॉस्ट पे पहुंचे. सो व्हाट विल बी काउंटेड इन द जीडीपी? बिस्किट्स, नॉट द वीट, क्योंकि वीट की कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड हो गई, शुगर की कॉस्ट भी इंक्लूड हो गई, पैकेजिंग की कॉस्ट भी इंक्लूड हो गई, ऑयल की कॉस्ट भी इंक्लूड हो गई. तो हम काउंट क्या करेंगे? सिर्फ बिस्किट्स, क्योंकि बिस्किट के अंडर सब कुछ आ जा रहा है. वीट भी आ जा रही, शुगर, ऑयल, पैकेजिंग, सब कुछ आ गया. क्लियर? लेट्स मूव अहेड. सी, सिंस दिस इज़ अ वन शॉट लेक्चर, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर रिविजन, not for making you study each and every line. So it's a revision video, just use it accordingly. थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी. Let's discuss about GDP, that is gross domestic product. So point number 1 is, what is GDP? GDP होता क्या है? Gross domestic product. This is the full form. जब भी आपसे पूछा जाएगा what is GDP in the exam, you will not write the full form. आप फुल फॉर्म नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फुल फॉर्म लिख के आ जाते हैं. इट इज़ नॉट आस्किंग यू द फुल फॉर्म, इट इज़ आस्किंग यू द मीनिंग, कि आप क्या उससे इन्फर कर पा रहे हैं. सो आपको फुल फॉर्म नहीं लिखना. वेर एवर देर इज आस्किंग यू द फुल फॉर्म विच इज़ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो आपने याद किया है, ठीक है, लेकिन हर जगह आपको वो नहीं लिखना. सो वॉट इज़ GDP? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. दिस वर्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनल वर्ड को भूलना नहीं है. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अभी एग्जाम्पल से समझाया था कि क्यों हम फाइनली काउंट कर रहे हैं. बिस्किट के अंदर वीट की कॉस्ट भी आ गई, शुगर की कॉस्ट भी आ गई, ऑयल की कॉस्ट भी आ गई, पैकेजिंग की कॉस्ट भी आ गई. तो इसीलिए हम सिर्फ बिस्किट को काउंट करेंगे, वीट, ऑयल, शुगर अलग अलग काउंटिंग नहीं करेंगे. The value of final goods and services produced in all the 3 sectors during a particular year, ईयर वाइज निकलती है GDP, provides the total production of the sector for that year. This is called the gross domestic product or GDP of a country, right? The next point is, more the GDP, more bigger the economy of the country is. जितना ज़्यादा GDP होगा उतनी ज़्यादा कंट्री की प्रोग्रेस होगी. तो हम प्रोग्रेस को कैसे डिनोट कर रहे हैं? जितना ज़्यादा GDP उतना ज़्यादा प्रोग्रेस. ठीक. दिस वॉज ऑल. सो दिस वॉज ऑल अबाउट GDP. आगे बढ़े, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स.
सेक्टर्स में पहले क्या था, पहले क्या सिनेरियो था और अब क्या सिनेरियो है, क्या चेंजेस आए हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. लेट्स स्टार्ट. इसको हटा देते हैं लाइक दिस और इसको थोड़ा सा क्या, ठीक है ना फॉन्ट एवरीवन. At initial stages of development, primary sector was the most important sectors of economic activity in a country. इंडिया में भी at the time of independence सबसे ज़्यादा फ्लरिश सेक्टर कौन सा था? प्राइमरी सेक्टर. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. अबाउट 66% of India's people were occupied with agriculture in some way or the other. प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा फ्लरिश सेक्टर था. ठीक है. फर्स्टली इन अ कंट्री इनिशियली क्या था, इनिशियल स्टेजेस पे प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा फ्लरिश था. एज टाइम पास्ड बाय व्हाट हैपेंड विद द इनोवेशन ऑफ फार्मिंग मेथड्स, एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर. ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फर्टिलाइजर्स आना स्टार्ट हुए, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स एंड डिफरेंट न्यू टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आना स्टार्ट हुई. और उसके साथ क्या क्या हुआ कि फूड प्रोडक्शन बढ़ने लगा. सिंस फूड प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन होने लगी, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी आने लगी और हम लोग और ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने लगे. जैसे हमने अपनी कंज्यूमिंग रिक्वायरमेंट्स भी पूरी की और एक्सपोर्ट भी किया फूड को. अब क्या हुआ, स्लोली जब एग्रीकल्चर में कई लोग होने लगे, एग्रीकल्चर की प्रोग्रेस तो बढ़ने लगी, ठीक है, लेकिन एक फील्ड में कितने लोग काम करेंगे, राइट. अब जब उस फील्ड अपना मैक्सिमल अमाउंट दे रही है यील्ड का, तो अब और उस पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है. सो देन पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग टूवर्ड्स वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, शिफ्टिंग टूवर्ड्स द सेकेंडरी सेक्टर. पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा एक्टिव था, लोग सबसे ज़्यादा फार्मिंग और एग्रीकल्चर में वर्क करते थे. देन आफ्टर दैट स्लोली क्या हुआ कि हम इंडस्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट होने लगे, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लगा. अब हम फूड हमारे पास अब इतना ज़्यादा हो गया कि हम अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड्स तो पूरी कर ही रहे थे, साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे. ईटेबल्स, जो भी फूड मटेरियल्स है, जो भी हमारा यील्ड हो रहा था, वो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे. तो अब इनफ हो गई थी ग्रोथ उसमें. फिर लोगों ने क्या किया, वर्किंग इन इंडस्ट्रीज़. They started working in industries. Some people also got involved in transportation, that is the tertiary sector. अब शिफ्ट होने लगे, प्रेफरेबिलिटीज़ एंड प्रायोरिटीज़ अब शिफ्ट होने लगी सेकेंडरी सेक्टर की तरफ और टर्शरी सेक्टर की तरफ. देन gradually the secondary sector became the most important in the economy and providing employment. जैसे जैसे शिफ्ट होने लगा प्राइमरी से लोग सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट होने लगे. डिफरेंट इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग, इक्विपमेंट मेकिंग, टेक्सटाइल कमिंग इन लार्ज नंबर्स. टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्रीज, ये सारे अब इंडस्ट्रियल वर्क शुरू हो गया. फूड प्रोडक्शन हो गई तो फूड की प्रोसेसिंग करनी ज़रूरी है. देन इक्विपमेंट्स मेकिंग, टेक्सटाइल्स, paper, fiber industries, everything came into existence slowly and gradually. People shifted their priorities. This led to start of services such as banking, health, education, etc. अब टर्शरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने लगा. क्यों? क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ हैं तो इंडस्ट्रीज़ में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी तो कोई चाहिए. एक प्लेस से दूसरी प्लेस अगर हमें गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराना है, उनके लिए भी हमें कोई सर्विसेज चाहिए. अब टर्शरी सेक्टर आ गया रोल प्ले में. द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड स्टार्टेड एम्प्लॉइंग मोर पीपल. क्योंकि सर्विस सेक्टर क्या है, बहुत डाइवर्स है, उसमें बहुत सारी सर्विस हैं, बी इट हेल्थ, बी इट बैंकिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रही, सारी सर्विस सेक्टर में आ रही. तो इस हिसाब से तो सबसे ज़्यादा डाइवर्स, सबसे ज़्यादा वैरायटी किस में है, सर्विस सेक्टर में. सबसे ज़्यादा ऑप्शंस लोगों के पास किस में है, सर्विस सेक्टर्स में. स्लोली एंड ग्रेजुअली सर्विस सेक्टर केम इनटू द प्रिंसिपल रोल एंड स्टार्टेड एम्प्लॉइंग more and more people. Done?
Let's move towards the next slide. Contribution in GDP. So in the period of 1973 to 74, that means in the initial years, the primary sector has contributed maximum to the GDP. Point number 1. सबसे पहला मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले इंडिपेंडेंस के टाइम और इनिशियल डेज में जब कंट्री अभी स्टैब्लिश हो रही थी तो सबसे ज़्यादा फ्लरिश सेक्टर कौन सा था? प्राइमरी सेक्टर. सबसे पहले क्या चाहिए आपको? यू नीड फूड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड एग्रीकल्चर, यू नीड मैक्सिमल यील्ड्स फ्रॉम योर फील्ड. जब आपको पता चलने लगा कि हाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, हमने बहुत अपनी फील्ड से अपना मैक्सिमम ग्रोथ करा लिया है, मैक्सिमम यील्ड दे रही है फील्ड, तो हम धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने लगे कि ठीक है चलो अब वीट तो आ गई, अब वीट से बिस्किट बनाने के लिए कौन चाहिए? इंडस्ट्रीज़ चाहिए. इंडस्ट्रीज़ चाहिए, राइट. तो इंडस्ट्रीज़ चाहिए, उसके लिए हम सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट होते गए. इंडस्ट्रीज़ में बिस्किट्स बन गए. अब बिस्किट्स बनने के लिए फिर ट्रांसपोर्ट हमें कराना है डिफरेंट शॉप्स पे ताकि वो कंज्यूमर्स तक पहुंच सकें. उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए यानी टर्शरी सेक्टर चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन. ये सारे वैल्यूज़ के साथ दे रखें कि किस ईयर में किसने से कितने ईयर तक क्या क्या चेंजेस आए. But in 2013 to 14, when tertiary sector has contributed maximum to the GDP, now the question is why? There are various factors behind this, and this is the most important thing for your exams. Factors which led to change in contribution. आखिर क्यों contribution change हुई? इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे factors थे. So let's study them in detail. Shift in contribution. The development of agriculture and industry leads to the development of services. क्योंकि प्राइमरी सेक्टर डेवलप कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप कर रहा है, तो इन दोनों की डेवलपमेंट से हमें टर्शरी सेक्टर को भी डेवलप करने की नीड आ गई. क्योंकि अगर हमारे पास प्रोडक्शन है, हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लेकिन ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ट्रेड नहीं है, स्टोरेज ही नहीं है, बैंकिंग नहीं है, तो फ़ायदा क्या? क्या हमें उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा? क्या हमें कोई प्रॉफिट होगा? क्या इन ऑल कंट्री को कोई प्रॉफिट हो सकता बिना ट्रांसपोर्टेशन, बिना कोई ट्रेड? आज ट्रेड रिलेशन से इंडिया को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है इंडिया को, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपोर्टिंग, ट्रेडिंग, स्टोरेज एंड बैंकिंग. अगर वेयर हाउसेज नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा? हम एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस है वो कहाँ स्टोर करेंगे? सीड्स हम कहाँ स्टोर करेंगे? जब हमारे पास जगह नहीं होगी, वेयर हाउसेज नहीं होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है. सो प्राइमरी सेक्टर जैसे जैसे डेवलप करता गया, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जैसे जैसे डेवलप करती गई, टर्शरी भी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट करता रहा. The greater the development of the primary and the secondary sectors, more would be the demand for such services. एजुकेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, हेल्थ, ये सारी किस में आती हैं? टर्शरी सर्विसेज यानी टर्शरी सेक्टर्स. आई थिंक दिस इज क्लियर. Now these are some important points. In the period 1973 to 74, 40% is contributed by primary sector in the GDP of the country. In the secondary sector contributed only 12%. 40% पहले प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता था इनिशियल टाइम में 73 to 74. 12% सेकेंडरी सेक्टर और 48% टर्शरी सेक्टर. 12% सेकेंडरी सेक्टर और 48% सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. आगे क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज ड्यूरिंग द पीरियड 72 to 73 was 74% of India, people of India were engaged in primary sector, only 15% involved in tertiary sector. प्राइमरी और टर्शरी का बेसिकली कर रहा है. 74% प्राइमरी सेक्टर्स में थे और 15% ओनली वर इन टर्शरी सेक्टर्स. नेक्स्ट, इन 2013-14 जब और रिसेंट टाइम आया, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर इन जीडीपी इन द कंट्री इंक्रीज टू 67%. 67% कंट्रीब्यूशन होने लगा. टर्शरी का कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगा
कंपेरेटिवली अदर सेक्टर्स के. प्राइमरी सेक्टर रिड्यूस टू ओनली 12%. समझ में आ रहा है? जैसे जैसे टाइम इन्हांस कर रहा है क्या हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन कम हो रही है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, जबकि टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है. प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द 2012, 11 एंड 12. एम्प्लॉयर सबसे बड़ा कौन है? अभी भी सबसे ज़्यादा लोग कहाँ हैं? एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ यानी प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि अगर इतने सारे लोग हैं, एक क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है आना चाहिए सबके दिमाग में कि अगर इतने सारे लोग प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, अगर इतने सारे लोग एम्प्लॉयड हैं प्राइमरी सेक्टर में, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, तो क्यों उसकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 12% रह गई? यस और नो? इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन विच शुड कम इन एवरीबडीज माइंड कि अगर एम्प्लॉय इतना ज़्यादा लोगों को कर रहा है, इतने ज़्यादा लोग उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, प्राइमरी सेक्टर के इंक्लूडेड, तो इतनी कम कंट्रीब्यूशन क्यों है जीडीपी के लिए? जबकि टर्शरी सेक्टर में हम देख रहे हैं कि कम लोग हैं, फिर भी प्रोडक्शन ज़्यादा करे, 67% कंट्रीब्यूशन दे रहा है जीडीपी में. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? लेट्स मूव अहेड एंड फाइंड आउट एन आंसर टू इट. Disguised unemployment, this is the only answer. क्यों आखिर इतने सारे लोग होने के बावजूद एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम हो रही है? So this is the reason. More people engaged in agriculture. More people engaged in agriculture than the necessity. अगर एक खेत में only 4 people की रिक्वायरमेंट है लेकिन फैमिली है 10 पीपल की, कितने की रिक्वायरमेंट है? 4 पीपल की ओनली, लेकिन फैमिली कितने की है? 10 पीपल की, और 10 में से 8 वर्क कर रहे हैं फील्ड में. क्या 8 की ज़रूरत है? देखा जाए तो क्या सच में 8 पीपल की ज़रूरत है फील्ड को? नहीं. फील्ड को ज़रूरत तो कितने की है? सिर्फ 4 लोगों की, लेकिन 8 लोग काम कर रहे हैं. फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा. बाकी लोग जिनको इतना वर्क नहीं है, एक तो लोग फुल पोटेंशियल से अपना वर्क नहीं कर रहे. अगर हम 10 घंटे काम कर सकते हैं तो हम 8 ही घंटे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं इसलिए पर पर्सन काम कम हो जा रहा है. जितना मेरी फुल पोटेंशियल है, जितना मेरे पास एनर्जी, उतना तो मैं वर्क ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतने सारे लोग हैं. और कुछ लोग तो खाली ही बैठे हुए हैं. यस और नो? इतने सारे लोगों को एम्प्लॉय कर लिया है फील्ड ने. फील्ड को ज़रूरत थी 4 लोगों की, लेकिन हैं कितने? 8 लोग. ज़रूरत से ज़्यादा ही लोग हैं. दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब. अब कहने को तो 8 लोग हैं, 8 लोगों के पास ही सारी जॉब है. जॉब तो पूरे लोगों के पास है, लेकिन क्या फील्ड को इतने की ज़रूरत है? नहीं. ये डिस्गाइज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट है. ये लोग एक्चुअली अनएम्प्लॉयड हैं, ये लोग एक्चुअली बेरोज़गार हैं, बट ऐसा लग नहीं रहा कि ये लोग बेरोज़गार हैं. द रीज़न बीइंग कि ये लोग फील्ड में हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फील्ड एंड दे आर वर्किंग इन द फील्ड. 4 लोग भी अगर, तो कैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है? अगर 4 लोगों की बदले 8 लोग काम करेंगे तो क्या प्रोडक्शन बढ़ जाएगी फील्ड से? ना. प्रोडक्शन तो उतनी ही रहनी है जितनी 4 लोगों पे रहनी है. बाकी तो लोग बेकार बैठे हैं ना, बाकी तो लोग थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं. दैट इज़ नॉट नीडेड. और वो 4 लोग जिनको काम करना चाहिए वो अपनी फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे. तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ये क्लियरली विजिबल नहीं हो रही आपको, ये आपको दिख नहीं रही, क्योंकि आपको सारे लोग काम करते दिख रहे हैं. यस और नो? आपको सारे लोग काम करते दिख रहे हैं, पर अगर आप इनमें से 4 लोगों को हटा भी देते हैं तो भी क्या फील्ड के प्रोड्यूस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं. इट इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. जैसे कि एक शॉप में सपोज 5 लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन शॉप बहुत बड़ी नहीं है, शॉप को बस 2 और 3 एम्प्लॉयज़ चाहिए. 5 लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं. फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रही है, तो प्रोडक्शन उतनी
और जो लोग पूरी फुल पोटेंशियल से काम जिनको करना चाहिए था 8 आवर्स वर्क करना चाहिए था, वो लोग 5 आवर्स में ही अब थक जा रहे हैं. उनकी पोटेंशियल कम हो गई, उनका वर्क कैपेसिटी, वर्क आवर्स कम हो गए. कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा इससे, है ना. इस तरह डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में बहुत होता है. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग फील्ड के फैमिली के एक ही फील्ड पे वर्क कर रहे हैं, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा. सारे लोग एम्प्लॉयड दिख रहे हैं, लेकिन इसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट. राइट. अब सबको समझ में आया होगा कि क्यों आखिर एग्रीकल्चर जो है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर होने के बावजूद कम प्रोडक्शन कर रहा है. क्योंकि उसको इतने की ज़रूरत ही नहीं है. द पीपल आर डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड. क्योंकि वो लोग अब जैसे कि मान लो ये लोग एक फैमिली के लोग हैं, मैं यहाँ से 4 लोगों को हटा दूँ, मैं यहाँ से कहूँ कि आप लोग हट जाइए, 4 लोग, यहाँ सिर्फ 4 लोग ही वर्क करेंगे, बाकी 4 को मैं किसी और सर्विस में डाल दूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को एजुकेशन में डाल दूँ, किसी को हेल्थ सेक्टर में डाल दूँ, और बाकी 2 को मान लो मैंने ट्रांसपोर्टेशन में डाल दिया. सो दे आर अर्निंग मोर नाउ ना. अब ना फ़ायदा होगा फैमिली को. बाकी 8 लोग तो बेकार थे, बाकी 4 लोग तो बेकार थे ना, उनको मैंने दूसरे सर्विस में डाल दिया. अब वो ग्रेटर अर्निंग देंगे, अब वो अदर सेक्टर्स में इन्वॉल्व होके अपने लिए अर्न करेंगे, रादर बीन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड. ऐसे तो वो बैठे हुए थे, 2-2 घंटे काम कर रहे थे बस, है ना. एंड द प्रोड्यूस वॉज द सेम. अब हम उनको अलग सर्विसेज में इन्वॉल्व करके फैमिली के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं. सो हाउ डू वी क्रिएट एम्प्लॉयमेंट? let's first remove this. And yes, granting loans at lower interest rate. Whenever people want to start a business, or they want to open a shop, they want loans. So if we grant loans at lower interest rate, more and more people will be able to take the loans and will be able to start their own small businesses. Investing in infrastructure such as building a dam at a suitable place, thus it will create employment, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को काम प्रोवाइड करेंगे. Increasing efficiency of transportation and storage, creating more and more warehouses and public transport. और बहुत ज़्यादा लोगों को हमें टर्शरी सेक्टर्स में भेजना चाहिए. प्राइमरी सेक्टर्स में जो लोग डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड हैं, जो दिखते हैं बस एम्प्लॉयड बल्कि हैं नहीं, just they need to change their jobs so that to earn more profit. Promoting small scale industries such as mills, honey collection centers, जिनको हम गृह उद्योग कहते हैं. आज जो छोटे छोटे गृह उद्योग हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ्स जो हैं छोटे छोटे सामान बना के, या तो वुडन छोटे छोटे कुछ वुडन टॉयज़ हो गए, या फिर बहुत से हाउसवाइफ्स पिकल्स और पापड़ वगैरह बनाकर जो सेल करते हैं, दैट इज़ गृह उद्योग, दैट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सो वी शुड प्रमोट दो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिकॉज दे आर मेकिंग मोर एंड मोर पीपल सेल्फ डिपेंडेंट, फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट. जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हैं, SHGs, they are also helping people. So we should all promote these industries, and we should all buy from such people, such vendors, small vendors who are selling small commodities, etc. Emphasis on education and training center. Education is very important. Training centers are important for skill development. So skills and education are very, very important. If more and more people in the society are educated, they will create more and more employment. They will create training centers, will create skill makers, and more skilled workers will be employed to the industries. For example, identifying potential in an area. For example, an area can be developed as a tourist site.
every area has a different potential. For example, there are some areas which have beautiful monuments or scenic beauties or maybe gardens and stuff. So these areas can be developed as a tourist site. Government welfare schemes like making well or pump near farms, providing electricity, building hospitals, all these generate employment. What is Manrega? This topic is extremely important for your board exams. Manrega. This can have a lot of questions, in-depth questions can come. ये देखो मैंने zoom कर दिया. The central government in India made a law implementing the right to work in 625 districts called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, which is known as Manrega. So this is what the full form is. ये जो है ना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, दिस इज द फुल फॉर्म. ये क्या है? What is this act? So the central government in India made a law implementing the right to work. What is most important? Just a minute. अब देखो, अब मैं सिर्फ important points मार्क कर रही हूँ. Right to work. कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? 625 डिस्ट्रिक्ट्स में. क्या इसका फुल फॉर्म है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, विच ईयर? 2005. दिस इज नोन एज मनरेगा. ओके बस इतना ही था इसमें. पहले क्या है, अब अंडर मनरेगा 2005 क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो अब उसके बारे में बात करते हैं. अंडर मनरेगा 2005 in rural areas, basically all those who were able to and are in need of work are guaranteed 100 days. कितने दिन की? 100 days employment in a year by the government. एक साल में 100 दिन की employment. Who are able to, that means they are not disabled. In need of work, that means they are willing to, ये भी हो सकता है. ठीक है, नीड ऑफ वर्क की जगह लिख सकते हैं दे आर एबल टू एंड विलिंग टू वर्क आर गारंटीड 100 days of scholarship in a year by the government. If the government fails in this duty to provide employment, it will give unemployment allowances. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेंगे टू द पीपल इफ इट फेल्स in its duty to provide employment. It will give unemployment allowances to the people. This is point number 1. अब आगे क्या? So this is what was important. बस इतना ही important था मनरेगा में. What is this act? पहली बात तो क्या है ये एक्ट, कब है? तो when? In 2005. What is the full form? So please remember the full form of Manrega. And what if the government fails? It will provide unemployment allowances. Let's move ahead. Organized and unorganized sectors. So what is it? Organized sectors are registered by the government and have to follow its rules and regulations, while unorganized sectors are largely outside the control of the government. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? ऐसे सेक्टर्स, ऐसी शॉप्स या बड़ी इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. दे हैव टू फॉलो इट्स रूल्स. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. यही होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स. जो बड़े बड़े शॉप्स हैं, जो भी बड़े मिल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनको उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइक द वर्किंग टाइम, वर्कर्स का वर्किंग टाइम कितना होगा, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी ड्यूरिंग द वर्क, क्या क्या फॉर एग्जांपल अलाउंसेस रहेंगे, जैसे मेडिकल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस एक्सेट्रा. अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है
ये आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट होता है। इस पे गवर्नमेंट का कोई रूल्स रेगुलेशंस इफेक्ट नहीं डालता। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, whereas in the unorganized sector there is no job security, no facilities to the workers, to the employees. See, the same thing is written. Workers in the organized sector enjoy security of employment, while in the unorganized sector there is no job security. Organized sectors में जो भी बड़े बड़े offices में work करते हैं, they cannot be fired like जस्ट एट द मोमेंट कि अभी आपसे आज से आप नौकरी पे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यू कैन नॉट जस्ट फायर अ पर्सन लाइक दैट, यू हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, ऑफिसेज में, इंडस्ट्रीज़ में आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जो एम्प्लॉयर है वो अपनी मनमानी, अपनी मर्जी नहीं चला सकता एम्प्लॉय पे। उसका मन करेगा तो उससे एक्स्ट्रा टाइम करा ले, लेकिन अगर एक्स्ट्रा टाइम कराएगा, ओवर टाइम कराता है तो उसके लिए पे करेगा। अनएम्प्लॉयड सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जितना मर्जी वर्क कराए। जैसे कि एक लेबर है, लेबर, डेली वेज लेबर, तो वो किस में काम कर रहा है? ऑर्गेनाइज में, अनऑर्गेनाइज में? ऑब्वियसली अनऑर्गेनाइज में। जितना मन कराया उससे काम कराया, अगर एक्स्ट्रा टाइम के पैसे नहीं भी दिए तो भी वो कहीं जाके कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सेक्टर कैसा है? अनऑर्गेनाइज्ड। तो इसीलिए जो भी अनस्किल्ड लोग होते हैं, अनस्किल्ड, प्लीज़ इस बात को ध्यान से समझ लो, हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए। अनस्किल्ड, जितने भी अनस्किल्ड लोग हैं, जिनके पास स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, वो कौन है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वो जाते हैं। जैसे कि छोटी छोटी शॉप्स हो गई, लेबर्स हैं, ठीक है, डेली वेज वर्कर्स हैं। सो दीज आर अनस्किल्ड, अनट्रेन्ड, उतने ट्रेन नहीं होते, ये स्किल्स नहीं होते, इनके पास एजुकेशन नहीं होती, डिग्री नहीं होती, किसी तरह के क्वालिफिकेशंस नहीं होते। जिनके पास, जो क्वालिफाइड हैं, जो एजुकेटेड हैं, दे विल गो टू द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, जहाँ पे फिक्स्ड वर्क टाइमिंग है। इफ़ यू आर डूइंग ओवर टाइम यू विल बी पेड, ठीक है। आपके पास अलाउंसेस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, जॉब के अलावा भी फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे आपको हॉलीडेज़ भी ग्रांटेड हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अब ये बहुत डिटेल में दे रहा है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उप्स, ठीक है, इट्स क्लियर नाउ। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली इन अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। मैंने कहा था ना, वर्किंग आवर्स फिक्स हैं, टाइमिंग्स। इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर देयर इज नो पे फॉर ओवर टाइम वर्किंग, as we have discussed before, right? Let's move ahead. Organized workers get paid leave. Paid leave, मैंने बताया था ना, facilities available है, payment during holidays. Have we discussed this? Provident fund, gratuity, medical benefits, allowances, while no such benefit is given in unorganized sector. समझ में आ रहा है सबको? दो बार रिविजन हो रहा है, राइट और नॉट? इसके पहले भी मैंने बताया था ना, आई एम शोइंग द पेज एंड टेलिंग यू। प्लीज पे अटेंशन चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट टाइम वी आर रिवाइजिंग एंड आई मेड दिस वीडियो इन अ हरी just because I've got too many requests yesterday and I had to make it because I thought that I should help class 10 students. और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना so that more and more children gets connected with us. एंड टर्म 2 में भी हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मूव अहेड। जल्दी से बढ़ चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना। Examples of organized sectors are government employees, banks, whereas examples of unorganized sectors are home tutors, person working in small general stores, daily wage laborers. सारा किया है कि नहीं हमने? एग्जाम्पल्स दिया है, येस और नो? फिक्स्ड वर्किंग आवर्स का एग्जाम्पल दिया है, फैसिलिटीज़ का एग्जाम्पल दिया है,
अलाउंसेस, ग्रेच्युटी, मेडिकल लीव, पेड लीव्स, येस और नो? क्लियर है ना? बढ़े आगे. Now here we come to the last topic. Classification of economic activities on the basis of who owns the assets and is responsible for providing the services. कौन assets hold कर रहा है, किसके पास हैं वो assets? तो देखते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको zoom कर देते हैं. ठीक है ना? Done. Is the font very clear? Everyone. Activities can be classified into two types: private sector and public sector. Private sector क्या है? The government owns most of the assets. बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पब्लिक सेक्टर होना चाहिए यहाँ पे. प्लीज़ ध्यान दो सब लोग, पब्लिक सेक्टर होना चाहिए और यहाँ पे होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर. क्लियर? ठीक है. द गवर्नमेंट ओन्स, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की ओनरशिप रहती है. ध्यान से सुन लो, एकदम ध्यान से. पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की ओनरशिप रहती है. एसेट्स और सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि रेलवेज और पोस्ट ऑफिस. रेलवे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का नहीं होता है. प्लीज़ ध्यान से सुनो, नहीं तो गलती करके आओगे. पब्लिक, अब इससे आप कैसे कनेक्ट, जो अगर कोई बच्चा भूल रहा है तो प्लीज़ समझ लो. पब्लिक, गवर्नमेंट किसका ध्यान रखती है? पब्लिक का. और प्राइवेट मतलब क्या होता है? खुद का, इंडिविजुअल का. ठीक है, किसी कंपनी का, है ना. पब्लिक किसका, गवर्नमेंट किसका ध्यान रखती है? पब्लिक का. तो पब्लिक सेक्टर का ध्यान कौन रखेगा? गवर्नमेंट, राइट. और प्राइवेट सेक्टर में सारे एसेट्स, सर्विसेज प्राइवेट इंडिविजुअल्स की हैंड में रहेगी. ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? एक चीज़ और ध्यान से देखो, ओनरशिप ऑफ एसेट्स अभी डिस्कस किया था. डिलीवरी ऑफ सर्विसेज प्राइवेट इंडिविजुअल के हैंड में होती है, प्राइवेट कंपनीज के अंडर होती है. एग्जाम्पल्स देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसको याद नहीं अच्छे से याद कर लो. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज, RIL. एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. फुल फॉर्म, टिस्को का फुल फॉर्म प्लीज देख लो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड. So that's all for the day. Thank you everyone. Hope you enjoyed the lecture. Please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Also, there's one special slide for all of the children who are giving the board exams tomorrow. A little progress each day adds up to big results. So just trust the process, trust your progress, trust yourself, and good luck for your exams. Do the best and leave the rest. Bye bye, take care and all the best for your board exams.